السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ تلنگانہ کے وزیر لیبر CH ملاریڈی کو عوام کی برہمی کا سامنا۔ عوام نے ان کی کار پر کرسیوں اور پانی کی بوتلیں پھینک کر کیا احتجاج۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن میں پریس میٹ کی منعقد اور بتایا کہ انہوں نے 9 لوگوں کو گرفتار کیا جو نیرج قتل کیس میں ملزم ہیں۔ امبرپیٹ بڑی مسجد میں حج 2022 کیمپ کا انعقاد، جس میں تمام حاجیوں نے کی شرکت۔ حج کمیٹی کے عملے کو حج کے طریقہ کار کے بارے میں علماء کرام کے سرپرست مفتیان مولانا نے آگاہ کروایا۔ بھینسا شہر کے مدینہ کالونی میں مکان کے باہر پارک کی ہوئی الیکٹرک بائک میں اچانک سپارک ہونے سے آگ لگ گئی، جس سے بائک مکمل جل کر خاکستر۔ ضلع نرمل کانگریس صدر پوار راما راؤ نے ضلع کے نرساپور منڈل کے موضع نندن گاؤں کا رچا بنڈا پروگرام کے تحت کیا دورہ، جہاں ان کا والہانہ کیا گیا استقبال۔ حیدرآباد کلکٹریٹ کے سامنے عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں نے دیا دھرنا۔ حیدرآباد میں ایبٹس کلکٹر کے دفتر میں اپوزیشن لیڈروں اور کارکنوں نے مرکزی وزیر کشن ریڈی کے قافلے کو روک دیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی سالانہ رپورٹ برائے 2021-22 میں کہا، ہندوستان میں زر گردش جعلی کرنسی میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ جعلی نوٹوں بالخصوص 500 روپے کے نوٹس کی گردش پریشان کن۔ محکمہ صحت حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ اطلاع کے مطابق ایسے افراد جو منکی پاکس کی بیماری سے متاثر پائے جاتے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ مرکزی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں منکی پاکس وبا کے واقعات سامنے آنے کے بعد تمام ریاستی حکومتوں کو چوکسی اختیار کرنے کی دی گئی ہدایت۔ ریاست تلنگانہ جسے شدید مالیاتی بحران کا سامنا، اس کی صورتحال اس وقت مزید ابتر ہو گئی ہے، جبکہ مزید قرض اور شراب سے آمدنی کے حصول کے علاوہ حکومت انتظامیہ چلانے کے لیے زمینوں کو فروخت کرنے کے لیے منحصر۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کے وائس چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے کارپوریشن کی تاریخ میں پہلی بار مسافروں کے لیے 500 ml اور 1 لیٹر پانی کی بوتلیں واٹر باٹلز متعارف کرانے کا آئیڈیا کیا پیش۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر لیبر CH ملاریڈی کو شام عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام نے ان کی کار پر کرسیوں اور پانی کی بوتلیں پھینک کر احتجاج کیا، جس پر پولیس نے انہیں حفاظت کے ساتھ عوام کے درمیان سے باہر نکال لیا۔ یہ واقعہ گزشتہ شام ملاریڈی کے حلقہ ملکاجگری کے گھٹکیسر میں پیش آیا، جہاں وزیر موصوف نے ریڈی طبقے کے عوام کے ساتھ ایک جلسہ عام منعقد کیا تھا۔ گراؤنڈ میں کافی لوگ جمع تھے۔ بتایا گیا
है कि वजीर मल्ला रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से रेड्डी तबके के लिए किए गए फलाही स्कीमात का तस्करा करते हुए बार बार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ करते रहे। चीफ मिनिस्टर की बार बार तारीफ पर बरहम आवाम ने अचानक नारे लगाए, जिस पर वजीर मौसूफ ने अपनी तकरीर खत्म करके वहां से वापस हो रहे थे कि उनकी कार और उनके काफिले में शामिल दीगर कारों का ताक़ुब करते हुए आवाम ने कुर्सियां और पानी की बोतल, पत्थर और चप्पल फेंके। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नीरज पवार कत्ल केस में मुलजिम हैं। बादजा उन्होंने दोनों खानदानों से भी मुलाकात की और उन्हें अमन बरकरार रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से भी गुजारिश की है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें गांजे की लानत से भी दूर रखें। షాయినాథ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో జరిగిన హత్య కేసు ఏదైతే ఉందో అది దాని గురించి నేర పరిశోధన అనేది ఇప్పటివరకు బాగానే జరిగింది. 9 మంది ఎవరైతే యువకులు ఈ హత్య చేయడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారో, హత్య చేశారో వారందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ రోజు నుండి ఇక్కడ దశాబ్దాలుగా ప్రశాంతంగా నివసిస్తున్న రాజస్థాన్ నుండి ఇక్కడ వలస వచ్చి నివసిస్తున్న మాలీ కమ్యూనిటీకి చెందిన సమాజం మరి ఇంకోవైపు अंबरपेट बड़ी मस्जिद में हज 2022 कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम 2022 के हाजियों ने शिरकत की। हज कमेटी के अमले को हज के तरीक़ेकार के बारे में उलमाए कराम के सरपरस्त मुफ्तियान मौलाना ने आगाह करवाया। इस मौके पर मजलिस लीडर मोहम्मद ने इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ये इज्तिमा जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उन सबके जो है तो उन सबको जो है रहबर करने के लिए ये इज्तिमा किया गया है। यहाँ पर जो है जो भी इरफान साहब है और जामिया मस्जिद के अंबरपेट जामिया मस्जिद के कमेटी वाले हैं, इसको जो है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कामयाब करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी करें। तो जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उनको जो है हज किस तरीके से करना है, उम्रा किस तरीके से करना है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से अगर वही अरकान पूरे करें तो इंशाअल्लाह ताला उनका हज जो है। भैंसा शहर के मदीना कॉलोनी में मकान के बाहर पार्क की हुई इलेक्ट्रिक बाइक में गुज़िश्ता आधी रात को अचानक स्पार्क होने से आग लग गई, जिससे बाइक मुकम्मल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये इलेक्ट्रिक बाइक टीआरएस पार्टी सीनियर कायद अब्दुल अहद की थी, जो कुछ 6 महीने कबल अवाम मोटर से खरीदी गई थी। बादजा भैंसा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और जले हुए बाइक को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले निर्मल कांग्रेस सदर पवार रामा राव ने जिले के नरसापुर मंडल के मौजे नंदन गांव का रचा बंडा प्रोग्राम के तहत दौरा किया, जहां उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। बादजा प्रोग्राम से खिताब करते हुए हुकूमत की गलतियों और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर किया गया। इस दौरान मौजे नंदन गांव के अम्बेडकर यूथ सोसाइटी के तकरीबन 30 अरकान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें पवार रामा राव पटेल ने पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की कसर तादाद मौजूद थी। कबल अज़े अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला भी चढ़ाई गई। हैदराबाद कलेक्ट्रेट के सामने आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने धरना दिया। हैदराबाद में एबिट्स कलेक्टर के दफ्तर में अपोजिशन लीडरों और कारकुनों ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के काफिले को रोक दिया। इसके साथ ही थोड़ी देर तक कशीदगी देखी गई। बीजेपी कॉरपोरेटरों आम आदमी पार्टी लीडरों की थोड़ी देर तक तकरार हुई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में एक तकरीब में शिरकत की। आम आदमी पार्टी के लीडर इंदिरा शोभन पेट्रोल, डीजल और जरूरी अशिया की कीमतों में
में कमी का मुतालबा करने के लिए कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दे रहे थे। इस दौरान अपोजिशन कायदीन ने किशन रेड्डी के काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद कलेक्टर के दफ्तर से निकल रहे थे। बादजा पुलिस ने फौरी तौर पर दोनों ग्रुपों को गिरफ्तार कर लिया। సిగ్గులేని వెదవల్లారా అని తిడుతున్నాను। మీకు శరం అనిపిస్తలే? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుట్టిన భారతీయ జనతా పార్టీ బిడ్డల్లారా మీకు సిగ్గులేనారా అని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని। ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల పైన దాడి చేసేటువంటి మీకు కామన్ సెన్స్ లేదని అడుగుతున్నాను। మీరు ఒక తల్లికి పుట్టలేదని అడుగుతున్నాను। ఈ సందర్భంగా మీ సోయంతా నీ డెవలప్మెంట్లో చూపించు, మంచి చేయి, ప్రజలు నీతో నిలబడతారు। కానీ బుల్డోయిజం చేస్తే అదే బుల్డోయిజంతో నిన్ను పాతి పెడతారని గుర్తు చేయమని తెలియజేస్తున్నా। ఈ సందర్భంగా ఏ మాత్రం శరం ఉన్నా సిగ్గున్న భారతీయ జనతా పార్టీ మీ గుండాయిజాన్ని బంద్ చేసి देशभक्ति। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि मरकज में बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुल्क में ना तो बम धमाके हुए और ना ही दहशत गर्दों का हमला हुआ। बीजेपी से कबल हुकूमत में फिरका वाराना फसादात और दहशत गर्द हमले हुए थे। बीजेपी हुकूमत में इन वाकयात में कमी आई है जिसकी अहम वजह मुयस्सर पुलिसिंग है। किशन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात किया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 8 साला दौरे इख्तिदार में हासिल करदा अहम कामयाबियों की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए किशन रेड्डी ने कहा, फ्यूल की कीमतों में मज़ीद कमी का कोई इम्कान नहीं। मरकजी हुकूमत ने फ्यूल पर टैक्स को कम किया है। टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी के इस्तेमाल पर उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उन फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खर्च किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों के क़याम पर भी ये फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे। दरअसल सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो पौधों अराजियात के पट्टेजात जारी करें और अराजियत पर हरितहरम प्रोग्राम नाफिज करने से गुरेज करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब तहरीर करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि रियासत के ही 2450 मौजूआत पौधों अराजियात पर मुनहसर हैं। कबाइलियों के लिए पट्टेजात मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद महकमे जंगलात के ओहदेदार उन अराजियत पर शजरकारी कर रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट and औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट बराए 2021-22 में कहा है कि हिंदुस्तान में ज़ेर गर्दिश जाली करेंसी में इजाफा होता जा रहा है। जाली नोटों बिलखसूस 500 रुपए के नोट्स की गर्दिश परेशान कुन है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 500 रुपए के जाली नोटों की तादाद में ज़ायद अज 101.9% इजाफा हुआ। बहरहाल 100 और 50 रुपए के जाली नोटों की गर्दिश में कमी आई है। आरबीआई ने तहरीर किया कि 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए नया डिजाइन और 2000 रुपए के नोटों में बिला तरतीब 16.4%, 16.5%, 11.7%, 101.9% और 54.6% जाली नोटों का पता चला। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कदर के लिहाज से 500 और 2000 रुपए के नोट ज़र गर्दिश बैंक नोट्स की मजमूई कदर का 87.1% हिस्सा है।
गुज़िश्ता साल ये आदाद व शुमार 85.7% थे। 500 रुपए के नोट मईशत में सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाले नोट हैं, जो तमाम नोटों का 34.9% हिस्सा है। 10 रुपए के नोट से 21.3% के साथ दूसरे मुकाम पर हैं। RBI ने यह भी नोट किया है कि हिंदुस्तान में अब नकदी की वापसी हो रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबिल ज़र गर्दिश करेंसी की मकदार में 5% इजाफा हुआ और इसकी कदर में 9.9% का इजाफा हुआ। रियासत तेलंगाना जिसे शदीद मालियाती बहरान का सामना है, इसकी सूरत हाल इस वक्त मजीद अबतर हो गई है, जबकि मजीद खर्च और शराब से आमदनी के हुसूल के अलावा हुकूमत इंतजामिया चलाने के लिए ज़मीनों को फ़रोख्त के लिए मुनहसर हो गई है। इस तरह की सूरत हाल पैदा होने का इशारा CAG ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में दे दिया था। CAG ने 2 साल कबल 15 मार्च को असम्बली में पेश करदा रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया था कि आने वाले दिन मालियाती एतबार से तेलंगाना के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अपनी रिपोर्ट में CAG ने वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत तेलंगाना हकीकी जवाज़ और मुखन्ना की मंजूरी के बगैर रकम खर्च कर रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई अहम व बड़े महकमे जात जैसे SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद, बल्दी नज़्म व नस्क़, शहरी तरक्यात, हाउसिंग, ज़राअत को मुख्तस फंड्स को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में रियासती हुकूमत के खिलाफ संगीन रिमार्क किए हैं। रिपोर्ट में लफ्ज़ गैर हकीकत पसंदाना या गैर हकीकी 8 बार से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है। 162 सफ़हात पर मबनी CAG की रिपोर्ट में वज़ीर आला KCR की क़यादत TRS हुकूमत की कई मालियाती संगीन गलतियों की निशानदेही की गई है। CAG ने आज खुद हुकूमत को मशवरा दिया कि गलतियों की इस्लाह करते हुए मुस्तक़बिल में हकीकत पसंदाना तखमीना लगाने के इक़दाम करे। ये पहली बार नहीं है कि CAG ने TRS हुकूमत की सरजनिश की है, जबकि KCR ने तेलंगाना की बेहतर मईशत से मुत्तलिक झूठे वादे किए। CAG 15वें फाइनेंस कमीशन और दीगर मालियाती फर्म्स ने वाज़ेह कर दिया कि TRS हुकूमत ने तरक्की नमो के आदाद व शुमार के बारे में गलत बयानी से काम लिया है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा इतला के मुताबिक ऐसे अफराद जो मंकी पॉक्स एक किस्म की बीमारी है उससे मुतासर पाए जाते हैं, उनको आइसोलेशन अलग थलग रखा जाएगा। ये फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया है और दुनिया के कई ममालिक में मंकी पॉक्स वबा के वाक़यात सामने आने के बाद तमाम रियासती हुकूमतों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। महकमे सेहत ने ऐसे लोगों को जिन्होंने हालिया अरसे के दौरान इन ममालिक का दौरा किया जहाँ मंकी पॉक्स वाक़यात सामने आए थे, चौकस व चौकन्ना रहने और अपनी सेहत की निगहदाश्त करने का मशवरा दिया। अगर किसी शख्स को जिल्द पर खुजली या खारिश जैसे आसार नजर आते हैं तो उन्हें फौरी डॉक्टर से रुजू होने या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सेंटर से फौरी राब्ता कायम करने का मशवरा दिया गया। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। तेलंगाना के वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी को अवाम की बरहमी का सामना। अवाम ने उनकी कार पर कुर्सियों और पानी की बोतलें फेंक कर किया एहतजाज। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में प्रेस मीट की मुनक्किद और बताया कि उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार किया जो नीरज कत्ल केस में मुलजिम हैं। अंबरपेट बड़ी मस्जिद में हज 2022 कैंप का इनेकाद, जिसमें तमाम हाजियों ने की शिरकत। हज कमेटी के अमले को हज के तरीक़ेकार के बारे में उलमाए कराम के सरप्रस्त मुफ्तियान मौलाना ने आगाह करवाया। भैंसा शहर के मदीना कॉलोनी में मकान के बाहर पार्क की हुई इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक स्पार्क होने से आग लग गई, जिससे बाइक मुकम्मल जलकर खाकिस्तर।
जिले निर्मल कांग्रेस सदर पवार रामाराव ने जिले के नरसापुर मंडल के मौजे नंदन गांव का रचा बंडा प्रोग्राम के तहत किया दौरा, जहां उनका वालहाना किया गया इस्तकबाल। हैदराबाद कलेक्ट्रेट के सामने आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने दिया धरना। हैदराबाद में एबिट्स कलेक्टर के दफ्तर में अपोजिशन लीडरों और कारकुनों ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के काफिले को रोक दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट बराए 2021-22 में कहा, हिंदुस्तान में ज़र-ए-गर्दिश जाली करेंसी में इजाफा होता जा रहा। जाली नोटों बिलखसूस 500 रुपए के नोट्स की गर्दिश परेशान कुन। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा इतला के मुताबिक ऐसे अफराद जो मंकी पॉक्स की बीमारी से मुतासर पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया है और दुनिया के कई ममालिक में मंकी पॉक्स वबा के वाक़यात सामने आने के बाद तमाम रियासती हुकूमतों को चौकसी इख्तियार करने की दी गई हिदायत। रियासत तेलंगाना जिससे शदीद मालियाती बहरान का सामना, इसकी सूरत हाल इस वक्त मजीद अबतर हो गई है, जबकि मजीद कर्ज और शराब से आमदनी के हुसूल के अलावा हुकूमत इंतजामिया चलाने के लिए ज़मीनों को फरोख्त करने के लिए मुनहसर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने कॉरपोरेशन की तारीख में पहली बार मुसाफिरों के लिए 500 ml और 1 लीटर पानी की बोतलें वाटर बॉटल्स मुतारिफ कराने का आइडिया किया पेश। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।